ایک یہ جو میرے گھر خاندان اصل میں دیوبندی ہے، تو یہ جو مسئلہ آپ نے تقلید والا چھیڑا تھا نا، تو اس میں انہوں نے ایک ٹویٹ بتایا تھا مجھے، اس میں ایسا لکھا ہوا تھا، ایک عورت آتی ہے ایک کسی شیخ کے پاس سوال پوچھنے کے لیے، تو آپ میرا سوال تھوڑا تفصیلی ہے، سنیے گا. تو وہ عورت کہتی ہے کہ آپ مجھے اس مسئلے کا حل بتائیے. تو وہ شیخ کہتے ہیں کہ آپ کو میں آپ کے اماموں کے ذریعے بتاؤں یا پھر میں آپ کو قرآن حدیث کے ذریعے بتاؤں. تو وہ عورت کہتی ہے آپ مجھے اماموں کے ذریعے بتائیں کیونکہ انہوں نے آپ سے بہتر قرآن اور حدیث سمجھا ہے. تو یہ بات ہو گئی اس میں. تو یہ کہتے ہیں اصل میں، تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. اس کی وضاحت ہم بار بار کر چکے ہیں بھائی، کہ ہم جو بتاتے ہیں صحابہ کے فہم کو لے کر چلتے ہیں. اب بتائیے ان اماموں نے سب سے صحیح سمجھا ہے یا صحابہ نے سب سے بہتر سمجھا ہے؟ ابھی رمضان والے ہیں، میں آپ کو ایگزامپل بتا دوں. رمضان میں جو عورتیں حمل کی حالت میں ہوتی ہیں، جو عورتیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، وہ روزہ تو نہیں رکھ پائیں گی، دقت ہوگی ان کے لیے. تو بعد میں وہ روزہ قضا کریں گی یا فدیہ دیں گی؟ چاروں امام کیا بولتے ہیں؟ بعد میں وہ قضا کریں گی. لیکن صحابہ بولتے ہیں قضا نہیں کریں گی، فدیہ دیں گی. اب کس کے؟ اب بتاؤ، صحابہ نے اچھے سے سمجھا ہے یا ان چاروں اماموں نے اچھے سے سمجھا ہے؟ یہ اہل حدیث کے ساتھ بہت بڑا اتہام ہے کہ اہل حدیث اپنی بات بتاتا ہے. نہیں، اہل حدیث قرآن اور حدیث، دیکھیں قرآن و حدیث میں جو سری نص ہیں، اس میں تو آپ کو فہم کی ضرورت نہیں ہے. قل هو اللہ احد، اللہ نے کہا، کہہ دو اللہ ہے. کہ اس میں آپ کس امام کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے بھائی؟ تو ایسے جو آیات صریحہ ہیں اور احادیث صریحہ ہیں، ان کے فہم میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں صریح نصوص نہ ہوں. تو یہ جو مقلدین ہوتے ہیں یہ صریح نصوص کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جب فہم کی بات آتی ہے تو صحابہ کے فہم کو چھوڑ کر بعد والوں کے فہم کو لے لیتے ہیں. تو بھائی صاحب، اگر کسی نے آپ کو اس طرح سے بیوقوف بنایا نا کہ اہل حدیث اپنی بات کہتے ہیں، کیا یہ اماموں سے بہتر سمجھ سکتے ہیں؟ تو ان سے پوچھو کہ اہل حدیث اگر سمجھ کی بات آتی ہے، فہم کی بات آتی ہے، تو صحابہ کے فہم کو لے کر چلتے ہیں. تو کیا صحابہ کا فہم بہتر ہے یا ان چار اماموں کا فہم بہتر ہے؟ جی شیخ. اور وہ اچھا، یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں اس واقعے سے تاثر تو یہ ملتا ہے کہ بھئی وہ بتانے والا مثلا کوئی حنفی ہے، تو اب حنفی اپنے امام ابو حنیفہ کا مسلک بتائے گا اس کے بقول، اور اگر ہم بتا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہاں امام ابو حنیفہ کہاں ہم، تو گویا حنفی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو امام ابو حنیفہ کا مسئلہ بتایا، ان کا فہم بتایا، اور یہ مولوی جو بیٹھا ہوا ہے یہ تمہیں اپنا فہم بتا رہا ہے، اس لیے فہم مانے امام ابو حنیفہ کا، اس مولوی کی بات چھوڑ دو. یہی کہنے کا اس کے مطلب ہے. سوال ایسے آدمی سے یہ ہے کہ کیا ہر مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا مسئلہ بتاتا ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کے صاحبین کا مسئلہ نہیں بتاتا؟ کیا وہ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کے اور نیچے کے کسی عالم کا مسئلہ نہیں بتاتا جس کو فقہ حنفی نے راجع کیا ہوا ہے؟ تو یہ کہنا اہل حدیثوں کے لیے کہ ہم تم کو امام ابو حنیفہ کا مسئلہ بتا رہے ہیں اور یہ عالم سے بڑے امام ابو حنیفہ، تو سوال یہ ہے کہ اسی فقہ حنفی میں ہی امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہر دم تم نہیں بتاتے ہو. کیوں نہیں بتاتے تھے؟ کیوں ان سے نیچے والے ان کے شاگردوں کا مسئلہ بتاتے ہو اگر یہی اس کا مطلب ہے؟ بھائی یہ ڈگری لگا کر کے اس طریقے سے بالکل روڈ کے کنارے جو جاہل بیٹھا ہوا اس طرح سے اس گفتگو نہیں ہوتی. بھائی ایک چیز آئی ہوئی ہے، اس میں تنقیح ہوئی، پھر تنقیح ہوئی، پھر تنقیح ہوئی. اگر کسی عالم کے پاس میں کوئی حدیث تھی، اس کے صحت و ضعف کا مسئلہ اس کے سامنے حل نہیں ہوا ہے، اس کی اور سندیں اس کو نہیں ملی ہوئی ہیں، کسی روایت کے سارے متون اس کو نہیں ملے، کچھ متون ملے ہوئے تھے، بعد والوں کو سارے متون مل گئے، بعد والوں کو پچھلے لوگوں کا سارا فہم مل گیا، ایسا ممکن ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ پہلے کم راجع رہا ہو، کم سمجھ میں آیا ہو، بعد میں زیادہ سمجھ میں آ جائے پرانی تمام تحقیقات کو یکجا کر کے. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے. ہر مسئلے میں بعد والے پہلوؤں کے مخالف ہیں ایسا نہیں ہے. پھر اہل حدیث جو مسئلہ بتاتا ہے تو اہل حدیث کے ساتھ بھی سلف علماء کے اقوال موجود ہوتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے یہ جو کسی لنگڑی مار رہے ہیں، کیسی عامیانہ باتیں کر رہے ہیں. جب اہل حدیث عالم کوئی مسئلہ بتاتا ہے، کوئی فہم بتاتا ہے شریعت کا، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ اس کا خالی اپنا فہم ہوتا ہے اور اس کے پیچھے سلف کا فہم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے علماء کی تشریحات نہیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے امام شافعی کی تشریح ہوتی ہے، اس کے پیچھے امام مالک کی تشریح ہوتی ہے. تم امام ابو حنیفہ کی یا صاحبین کی تشریح اگر بتاتے ہو تو ایک اہل حدیث عالم اگر دین کے کسی مسئلے میں کوئی فہم بتاتا ہے تو اس کے فہم کے پیچھے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ان سے اوپر کے لوگ اور پھر صحابہ کرام کا فہم موجود ہوتا ہے. تو اس واقعے سے
जो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि भाई सलफी आलिम तो अपना फहम बता रहा है और हम उससे बड़े आलिम इमाम अबू हनीफा का फहम बता रहे हैं, ये तो बादी नजर में इब्तदाई तौर पे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया इसने, लेकिन हकीकत ये है कि सलफी आलिम भी जब बात पेश करता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसका अपना निजी फहम होता है, बल्कि वो फहम का जो सिलसिला होता है सहाबा से लेकर के अब तक बगैर किसी तासुब के उस सिलसिले का निचोड़ बता रहा होता है, वो उसमें तासुब नहीं होता है। और तुम्हारे पास तो एक ही दायरा है, हमारे पास कई दायरे हैं बगैर तासुब के कि हम हक को तलाश लेंगे, तुम्हारे पास एक दायरा है, उस दायरे से तुम बाहर नहीं निकल सकते। हत्ता कि हक अगर उस दायरे के बाहर भी हो, हक अगर बाहर भी हो फिक़ह हनफी के, तो भी वो हक तुम नहीं बताते। हत्ता की कहते भी हो कि हक वो मसला है, लेकिन चूंकि हम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं इसलिए मसला यूं होगा। लेकिन हम अहले हदीस ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं कि नहीं, जब हक इमाम मालिक के साथ है, हक इमाम अबू हनीफा के साथ है, तो फिर हम वो हक बताएंगे जो हक है, भले इमाम अबू हनीफा उसको कह रहे हो, भले इमाम शाफी उसको कह रहे हो। तो ये वाकया बता करके जो तासुर देने की कोशिश हो रही है कि अहले हदीस आलिम अपना कोई पर्सनल फहम और निजी फहम बता रहा है और उसके पीछे फहमे हदीस की, फहमे कुरान की कोई तारीख नहीं है, ये बिल्कुल गलत तासुर। जी सर भाई, हम इस स्ट्रीम में एक बार नहीं, इस स्ट्रीम में हम 10 बार ये बात कह चुके हैं कि आप अहले हदीस का कोई एक कौल बता दें या एक अमल ऐसा बता दें जो उम्मत के किसी भी इमाम का कौल नहीं है, लेडीज ने अपनी तरफ से गढ़ लिया, हम उससे रुजू कर लेंगे। हमारे यहाँ उसूल है ला यजूज़ु इहदासु कौलिन जदीद, किसी भी नए कौल का ईजाद करना जायज नहीं है। यानी कोई दीन के बारे में ऐसी बात कह देना जो उम्मत में साबिका किसी भी सलफ का फहम नहीं रहा हो, जिस पर जो सलफ का मौकिफ नहीं रहा हो, ऐसी बात कहना ही गलत हम समझते हैं। हम बार बार ये बात कह चुके हैं कि हम ये एक इमाम की तमाम अक़वाल और तमाम उनके मौक़िफ़ की पाबंदी के खिलाफ हैं, और इसी तरह हम इसके भी खिलाफ है कि कोई आप ऐसी बात कह दे जिस पर उम्मत का कोई इमाम ना रहो, क्योंकि हम इजमा को मानते हैं। तो अगर हम कोई ऐसी बात कह दे जिसमें उम्मत के कोई इमाम का वो मौक़िफ़ ना रहा हो, उम्मत के किसी आलिम का वो मौक़िफ़ ना रहा हो, तब तो गोया कि हम इजमा के खिलाफ जा रहे हैं। जबकि हम बार बार ये बात कहते हैं कि इजमा हमारे यहाँ एक शरई दलील है। तो हम तो कई बार ये बात कह चुके हैं कि आप कोई एक कौल बता दें जिसमें हमने कोई ऐसी बात कह दी हो जिसपे ना इमाम शाफी है, ना इमाम मालिक है, ना अहमद इब्न हंबल है, ना इमाम अबू हनीफा है, ना कोई उम्मत के दूसरे फुक़हा हैं, सब ने उसके खिलाफ कही है और अहले हदीस उसके खिलाफ कर रहा है। तो ये तो इजमा की मुखालिफत हो गई, तो हम इसके खिलाफ नहीं है। बाकी रहा मामला ये की तकलीद का, तो तकलीद तो अपने आप में एक ऐसी चीज है जिस पर उम्मत के खिलाफ रही। उम्मत में कभी ये कौल नहीं रहा कि तकलीद करना है। तकलीद ना करने पर बल्कि हम ये कह सकते हैं ना कि उम्मत का इजमा रहा है। देखिए, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने एक जगह पर लिखा है, इन्नल कौला बिवुजूबि ताअति गैरि नबी फी कुल्लि अम्रिही व नहयिही हुआ खिलाफुल इजमा। उन्होंने कहा इन्नल कौला बिवुजूबि ताअति गैरि नबी, कि ये कौल कि गैर नबी की इताअत वाजिब है, फी कुल्ले अम्रिही व नहयिही, उसके हर अम्र नहीं में, फहुवा खिलाफुल इजमा, तो ये इजमा के खिलाफ है। ये इमाम इब्न तैमिया ने ये बात लिखी है, अपने मजमूल फतावा में ये बात मौजूद है। तो ये जो कौल है कि एक मुक़ल्लिद को अपने तमाम मामलात में अपने इमाम की बात माननी है और इमाम के मजहब से बाहर, इमाम के कौल से बाहर वो नहीं जा सकता, ये खुद इजमा के खिलाफ है। पहले यही तो साबित करें कि ये किसने ये बात कही है इमाम में से कि एक इमाम की तकलीद करना उसके तमाम अमरो नहीं में, उसके तमाम फ़िक़ही इज्तिहादात में वाजिब है। ये खुद इजमा के खिलाफ बात है। इसीलिए तो हम बार बार ये कहते हैं कि ये सलफियत के खिलाफ है। सलफ के यहाँ पर इस तरह का कभी मामला नहीं पाया गया कि किसी एक शख्स को आप जिंदगी में ऐसे इमाम का दर्जा दे दें कि उसके तमाम इज्तिहादात में उसकी तकलीद करना वाजिब करार दें। बल्कि एक जगह तो इमाम इब्न तैमिया ने फतावा में ही ये बात लिखी है कि मन औजबा तकलीदा इमामिन बिअैनिही उस्तुतीबा फइन ताबा इल्ला कुतिल। इतनी बड़ी बात लिखी इमाम इब्न तैमिया ने कि जिसने किसी एक इमाम मुअय्यन की तकलीद को वाजिब करार दे दिया, उससे तौबा कराई जाएगी, और अगर वो तौबा करेगा तो ठीक, व इल्ला कुतिल, उसको फिर वरना उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये बात इमाम इब्न तैमिया ने लिखी है कि एक इमाम मुअय्यन की तकलीद को वाजिब करना इजमा के खिलाफ है। और ऐसा आदमी जो कहता है दीन के तमाम मामलात में एक ही इमाम की तकलीद करना है, ऐसे आदमी से तौबा कराई जाएगी, नहीं तौबा करेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। मजमूल फतावा में ये बात मौजूद है।
या इलामुल मुवक्किन अच्छा। वगैरह जो किताबें उठाएं उसमें देखें। ये लोग बार बार जो हम्बली मजहब का और सऊदी अरब के उलमा का हवाला देते हैं, भाई सऊदी अरब के तो सबसे बड़े दो जो मराजे हैं अइम्मा में, वो इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह हैं और इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह हैं। जरा इनकी किताबें उठाएं और तमज़्हुब के बारे में और तकलीद के बारे में इनके मवाक़िफ़ देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये तकलीद के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, इनका क्या मौक़िफ़ रहा है। बल्कि माज़ी करीब में आप देखें इमाम इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, एक मरतबा उनसे पूछा गया हल यजिबु तक़लीदु लिमज़हबिन मुअय्यनिन वुजूबन लाज़िमा, क्या किसी मज़हब मुअय्यन की तक़लीद करना वाजिब है? तो उन्होंने कहा हाँ, एक मज़हब मुअय्यन की तक़लीद करना वाजिब है। फिर फरमाया लाकिन हाज़ल मज़हबुल मुअय्यन अल्लज़ी यजिब तक़लीदुहु मज़हबुर रसूल, वो मज़हब जिसकी तक़लीद करना वाजिब है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब है। लिअन्नल्लज़ी ज़हब इलैहि रसूल फ़इन्नहु वाजिबुल इत्तिबा, क्योंकि जिस तरफ रसूल गए उसकी इत्तिबा वाजिब है। वहुवल्लज़ी बिही सआदतुद दुनिया वल आखिरा, और उसी से दुनिया और आखिरत की सआदत है। तो शेख इब्न उसैमीन सऊदी अरब के अहले इल्म में एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि अगर अपनी सदी का उनको मुजद्दिद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो उनका ये अकीदा है तमज़्हुब के बारे में, ये उनका मौक़िफ़ है तमज़्हुब के बारे में। तो मेरे भाई आप देखेंगे कि ये अहले हदीसों पर एक झूठा इल्ज़ाम, और एक इससे पहले भी हम इसका बार बार वजाहत कर चुके हैं कि अहले हदीस ऐसा नहीं कि तकलीद नहीं करते तो सलफ के खिलाफ ही बात करते हैं। अहले हदीस तकलीद नहीं करते, लेकिन फ़िक़ही मसाइल में सलफ का हवाला देते हैं। आप हमारी फतवे की किताबें उठा करके देखें, उसमें आप देखेंगे फ़िक़ही किताबों का आपको हवाला मिलेगा। बस ये है कि भाई किसी मसले में इमाम अबू हनीफा का मजहब दलील की बुनियाद पर राजिह है तो वो ले लेते हैं, किसी मसले में इमाम शाफ़ई के मजहब दलील की बुनियाद पर राजिह है वो ले लेते हैं। हम ये तकलीद नहीं करते। जैसे गालिबन असर की नमाज का ही मसला है, उसमें किसी हनफी आलिम ने लिखा है कि भाई असर की नमाज के वक्त के मामले में जमहूर उलमा का कौल तो राजे है, लेकिन हम मुक़ल्लिद हैं। मैं इंशाल्लाह भी तलाश करके देता हूँ, मेरे पास शायद कहीं पर स्क्रीनशॉट किताब का रखा होगा। बाकायदा तस्लीम कर रहे हैं कि जमहूर के जो दलाइल हैं एक मिसल पर असर की नमाज पढ़ने के वो राजे हैं, लेकिन हम मुक़ल्लिद हैं और हम पर अपने इमाम की तकलीद वाजिब है, इसलिए हम अपने इमाम के हिसाब से असर की नमाज पढ़ेंगे। ये वो रवैया है जिससे हमको इख्तिलाफ है कि आप ये कह भी रहे हैं कि जमहूर के दलाइल मजबूत हैं, लेकिन फिर भी आप अपना मजहब छोड़ने को राजी नहीं, क्योंकि आपने तय कर लिया है कि हम अपने मसलक के बाहर नहीं जाएंगे। तो ये वो रवैया है जिसकी हम मुखालिफत करते हैं। जी शेख शाबान ने बहुत बढ़िया बात की थी जो मुझे पसंद आई, ये कहने के लिए उनको कि शेख शाबान ने जो कही कि हमारे पास अलग अलग तरीके हक तलाश करने के, आपके पास एक ही है क्योंकि आप तकलीद करते हैं। तो शेख असल में एक और इसमें ये बात ये कहते हैं, इलाबोरेट करते हैं, करिए मेरे ख्याल से एक बात मैं इसमें ये भी कह रहा था, एक लाइन, कि अगर वो ये बात कहते हैं ना कभी कभी, जैसे आपने कहा अभी जो मिसाल आपने पेश की थी, मिसाल बहुत पेश करते हैं असल में लोग, कसरत से पेश करते हैं, तहरीरों में तकरीरों में पे बयानात में पेश करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। तो अब अगर इस तरह की बात कहते हैं, अब हम उनसे पूछेंगे कि अगर तुम किसी मसले में मिसाल के तौर पर तुम्हारा आलिम इमाम अबू हनीफा का फहम बता रहा है और कोई अहले हदीस आलिम इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल तीनों का फहम बता रहा है, तीनों का फहम एक, तीन का फहम बता रहा है, और तुम्हारे पास जो है सिर्फ इमाम अबू हनीफा का फहम है। सवाल है कि क्या तुम तीनों का फहम मान लोगे? इमाम अबू हनीफा के मुकाबले में तीन लोगों का फहम, और जो तीनों के तारीख फहम में मौजूद है, यानी तीनों के मजहब में भी मौजूद है, तीनों शख्सियात का फहम है, फिर वो फहम उनके मजहब में भी मौजूद है। तो क्या इन तीनों के फहम, फिर इन तीनों के मजहब का जो मुश्तरका फहम है आज तक जो चला आ रहा है, उस फहम को क्या तुम मान लोगे? इमाम अबू हनीफा का फहम छोड़ दोगे? जो ये मिसाल पेश करते हो और इस तरह की बात करते हो, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये तो खाली अहले हदीसों को बुरा करने के लिए है बस। जी के फायदे। मैं बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाक खैर दे, बहुत बेहतरीन वज़ाहत किया। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। i+TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि i+TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, i+TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? i+TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, आई सपोर्ट i+TV। मैं i+TV के साथ हूं।